actually needed that. So hey guys, this is Animesh and welcome back to another video. I don't know what to call this. अगर तुम इसे vlog बुला रहे हो तो vlog सही, but today I wanted to talk about something. Today I wanted to address about something. I recently saw my one of the favorite creators on the internet breaking down. Yeah, तुम में से कुछ लोगों को पता होगा ये, और आई थिंक तुम लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा. एंड जिनको नहीं पता, दैट क्रिएटर गोज बाय द नेम डैंक रिशु. यू माइट नो हिम एज ऋषभ अरोरा. सो बेसिकली he was really upset. Upset about what? Basically, he was upset about his audience. Not really the audience, but the way he was treated after giving content, after giving videos, what we see. And he was really upset, he was really sad. And I was seeing this from a very long time, but I thought सबको दिख रहा होगा, but सबको नहीं दिख रहा था. So that's why today I wanted to make this video, a different kind of video. ये रेगुलर वीडियो की तरह नहीं होगा. दिस इज स्पेशली फॉर द क्रिएटर्स. अगर तुम एक ऑडियंस से ज़्यादा यूट्यूब पे क्रिएटर हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है. मेक श्योर यू डोंट मिस अ सिंगल सेकेंड अबाउट दिस वीडियो. सो या, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically today we'll be talking about the ugly side of YouTube India. Yeah, you heard that right. So let's start with talking about growing on YouTube as a creator. I'll be talking about this in the video from my perspective. So you can say that growing on YouTube as a small creator with so much of competition and you have to deal with so much of things. तुम्हें बहुत सारी चीज़ मैनेज करनी पड़ती है in order to run a YouTube channel, in order to make content continuously on that. So let's start with this. I might not have number of subscribers what I want today. I might not have number of views today. I might also not have a substantial amount of audience today on my channel watching my videos, but here I am. So basically I would like to tell you that कि इतने टाइम से इस प्लेटफॉर्म पे एक व्यूअर, एक क्रिएटर से ज़्यादा एक व्यूअर होकर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं. आज मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है. एंड एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे ये पता है कि टुडे ग्रोइंग ऑन यूट्यूब ऑन दिस प्लेटफॉर्म इज़ वेरी हार्ड. बहुत ज़्यादा हार्ड है. वन ऑफ द रीजन्स मे बी द यूट्यूब इंडिया itself has a very huge amount of audience crowd. It has a huge amount of creator density. हर कोई यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है, हर कोई अपनी अलग मेहनत कर रहा है, और तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी. अगर तुम्हें YouTube सीरियसली लेना है तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा. तुम्हें लिटरली बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे. एंड हर एक क्रिएटर अपने अलग वे में स्ट्रगल कर रहा है आज के टाइम पे. अगर वो बड़ा हो, अगर वो छोटा हो, लेट मी टेल यू वन थिंग. अ क्रिएटर इज़ नॉट स्मॉल और बिग with amount of his subscribers or amount of his numbers on the channel, but what makes a creator big or small is his content. What is he giving, what is he delivering to the audience makes him big or small. So basically if you want to up your game in YouTube, you have to be a very unique content creator on your own. Let me tell you my thing. मैं एक ideology follow करता हूँ that goes with UAC. So basically this U stands for unique. You have to be unique. तुम्हें अलग बनना पड़ेगा. Let me tell you, vlogging सब कर रहे हैं, but vlogging मुंबई का निखिल भी कर रहा है और vlogging Flying Beast भी कर रहा है. They have their own unique way to grab their audience on the channel, to have numbers on their channel. वो बहुत अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं अपने own way में, और उनकी audience भी बहुत अलग अलग है. Now the A stands for adaptability. अब अगर तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना है तो तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा. तुम्हें अलग अलग चीज़ें देखनी पड़ेंगी अपने हिसाब से कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या अलग कर रहे हो. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर कुछ चेंज होता है इस एनवायरनमेंट में तो तुम उसको कैसे अडेप्ट कर रहे हो, अपने कंटेंट को कैसे अडेप्ट कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, कंटेंट बना रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे. नाउ द C स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी. एंड लेट मी टेल यू, मेरी इस पूरी आइडियोलॉजी में सबसे हार्ड कंसिस्टेंसी है.
being consistent on this platform with so much number of audience, so much people or so less people watching you in my case is very hard. Now talking about the hate and talking about the depression following it, अब तुम बोल सकते हो कि अगर तुम्हारी ऑडियंस ज़्यादा बड़ी है तो तुम्हें हेट ज़्यादा मिलता होगा, अगर तुम्हारी ऑडियंस छोटी है तो तुम्हें हेट बहुत कम मिलता होगा, नेग्लिजिबल हेट मिलता होगा. लेट मी टेल यू, when I had 50 subscribers, not the subscribers but जब मुझे बहुत कम लोग देखते थे, and when I had posted a video, an unboxing video जो अभी भी तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा जिस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, that video was going in recommendation back then in 2018. वो सब लोगों को दिख रहा था वीडियो, बहुत सारे लोग रैंडम आ रहे थे मेरे चैनल पे, and I regret saying this but that video is one of the worst video on my channel. वो वीडियो अगर तुम मुझे अभी दिखाओगे तो हार्डली मैं 1 मिनट देखूंगा उस वीडियो को. एंड हेट की कोई एक स्केल नहीं है, तुम्हें कब मिलेगा तुम्हें भी नहीं पता. इट माइट गेट यू इन द अर्ली डेज, इट माइट गेट यू व्हेन यू बिकम फेमस और व्हेन यू हैव सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ ऑडियंस, बट हेट मिलता है एंड देन स्टार्ट्स द डिप्रेशन फेज. अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी करता हूँ या फिर मैं कुछ ज़्यादा अलग कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे होता ही नहीं है, बट या when different people see you, you get motivation, you get a hope for continuing something which you are doing. So basically that is also again a phase. And मेरे केस में बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों से निकलना and again to keep working on that. But still अगर मुझे 10 लोग भी देख रहे हैं, then too I'll make video because I'm not doing this for a monetary purpose. I'm doing this because I'm enjoying that. I'm enjoying the process. मुझे मज़ा आ रहा है सब चीज़ें करने में, so I'm doing that. Now let me tell you, जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं क्रिएटर के साथ तो वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग बन जाता है. लाइक आई एम कंप्लेनिंग राइट नाउ. तुम्हें तब तक कंप्लेनिंग नहीं बनना चाहिए जब तक तुम्हें एक टाइम ना हो जाए इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपेरिमेंट करते करते. जब तक तुम 100% नहीं दे दो अपने वीडियोज़ में, जब तक तुम 100% नहीं दो अपने कंटेंट में, तुम्हें बिल्कुल भी कंप्लेनिंग नहीं होना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच बोलूँ तो आज तक ऐसा कोई पीस नहीं है जिसमें मैंने 100% दिया हो एंड देन टू इट डिडंट वर्क आउट. तब मैं कंप्लेनिंग बन सकता हूँ, तब एक्चुअली मैं कुछ बोल सकता हूँ कि मैं कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है. बट टिल देन जब तक तुम अपना 100% नहीं दे रहे हो तुम कंप्लेनिंग नहीं बन सकते. यू एक्चुअली डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन अनलेस यू आर गिविंग योर 100% ऑन समथिंग लाइक दिस. नाउ बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम यूट्यूब पे कर सकते हो एंड एक्चुअली तुम यूट्यूब पे देखते होगे. फॉर एन एग्जाम्पल टेक यूट्यूबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल व्लॉगिंग है, एंड लेट मी टेल यू दैट दीज टू थिंग्स रियली अफेक्ट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, द ग्रोथ ऑफ योर चैनल, द पेस ऑफ योर चैनल बाई विच इट इज़ ग्रोइंग. बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है बिकॉज व्लॉगिंग में यू कनेक्ट विद डिफरेंट पीपल, यू कनेक्ट योर लाइफ स्टाइल विद डिफरेंट पीपल एंड सेम गोज विद द टेक. तुम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो, तुम लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बता रहे हो, सो या इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब तुम ये मानो या ना मानो, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ग्रोथ आना, जिसपे रीच मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है. इट इज़ नॉट दैट ईजी जो 2 साल पहले हुआ करता था या 3 साल पहले हुआ करता था. तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. तुम सोचते हो कि अगर तुम ये चीज़ एक तुम ही कर रहे हो तो अगर तुम यूट्यूब पे देखोगे तो वो चीज़ लिटरली 100 लोग कर रहे होंगे. बट वॉट मैटर्स इज़ कि तुम वो चीज़ कैसे कर रहे हो, तुम वो चीज़ कैसे डिफरेंटली कर रहे हो, तुम्हारा खुद का क्या वे है उस चीज़ को करने के लिए जो तुम्हें एक्चुअली उस क्रिएटर्स के क्राउड से डिफ्रेंशिएट करता है. सो बेसिकली दैट ऑल्सो मैटर्स. कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इस प्लेटफॉर्म पे. एंड अगर मैं ब्लंटली कहूँ तो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे ग्रो करना बहुत ज़्यादा ईजी है बिकॉज ऑफ देयर एल्गोरिदम. थैंक्स टू यूट्यूब्स एल्गोरिदम की इतनी जल्दी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलती है, इतनी जल्दी ऑडियंस नहीं आती है. एंड ऑन यूट्यूब तुम्हें ऑडियंस को ग्रैब करना अपने चैनल पे, अपने कंटेंट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ट्रस्ट मी, सुनने में बहुत आसान लगता है बट तुम्हें अपना वीडियो ऐसे बनाना पड़ता है कि क्यों वो बंदा 1 मिनट भी तुम्हारा वीडियो देखे और स्टिक करे अगले 4 मिनट तक. सो बेसिकली दैट मैटर्स अ लॉट. इस प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ऑडियंस और क्रिएटर दोनों की. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मिथ्स एंड फैक्ट्स. सब ये सोचते हैं कि अगर यूट्यूब पे वो वीडियोस बना रहा है, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है. बट लेट मी टेल यू सीरियसली,
अगर बाहर का कोई क्रिएटर, आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ इंडिया, अगर बाहर का क्रिएटर एक वीडियो बना के $10 कमा रहा है, इंडिया में भी एक यूट्यूबर वही सेम चीज कर रहा है, तो उसको लिटरली $1 मिलेगा। रीजन बीइंग, अगेन आई विल टेल यू, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा डेंसिटी है, बहुत ज्यादा लोग हैं, एंड इट बिकम्स क्वाइट हार्ड टू अर्न ऑन दिस प्लेटफॉर्म जस्ट बेस्ड ऑन दी एडवर्टाइजमेंट्स। और तब आती है स्पॉन्सरशिप्स, तब आते हैं स्पॉन्सर्स हर वीडियो में, एंड लेट मी टेल यू दैट ऑडियंस हेट स्पॉन्सर्स। क्रिएटर डजंट हेट स्पॉन्सर्स, बट audience literally hate them because they are promoting something on the channel for 1 minute, audience नहीं देखती, and that's where creator को एक demotivation आता है कि वो भी कैसे earn करेगा जब उसके advertisement से काम नहीं चल रहा है, जब उसको sponsors मिल रहे हैं, sponsors promote कर रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। and let me tell you that बहुत सारे YouTubers हैं इंडिया में जो actually quality sponsors promote करते हैं rather than gambling apps, rather than share market apps basically. So that becomes quite hard for a creator to accept that कि उसकी audience देखेगी उसे sponsor को shout out देते हुए and accept करेगी। That becomes quite hard. अब एक टाइम पे हर एक audience को अपने creator के बारे में लगने लग जाता है कि ये तो वीडियो सिर्फ पैसे के लिए बना रहा है, he is doing this just for the monetary cause, but लेट मी टेल यू, अगर मैं खुद का एग्जाम्पल दूं तो मैं अब तक वीडियो 2 साल से नहीं बना रहा होता, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेरा चैनल मोनिटाइज तक नहीं है, बट स्टिल आई एम मेकिंग दोज वीडियोज फॉर यू, फॉर मी मोस्ट इंपॉर्टेंटली। मैं अपने लिए वीडियोज ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस को इन्जॉय करता हूँ। मैं इन्जॉय करता हूँ जब लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं, इंट्रैक्शन होता है, एंड दे बेसिकली लाइक माई थिंग एंड दे बेसिकली गिव सजेशंस, रिव्यूज़। दैट हेल्प्स मी अ लॉट एज अ क्रिएटर। एक बात तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि क्रिएटर्स जितने भी हैं, बड़े या फिर छोटे, वो पैसे के लिए यूट्यूब कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं कर रहे ये सब चीज़ें क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, बट वो लोग ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, उनके पास पर्टिकुलर आर्ट है, और वो उस आर्ट को इस वीडियो प्रोसेस में दिखा रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जिससे तुम एंटरटेन हो, जिससे तुम एंजॉय करो, जिससे तुम्हारी डेली लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो। एंड इन रिटर्न ऑफ दैट तुम लीस्ट अगर कोई चीज़ कर सकते हो तो उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो, तुम उन्हें लाइक दे सकते हो वीडियो पे, तुम कमेंट में उन्हें सजेशंस दे सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, वो कहाँ रॉन्ग कर रहे हैं, कहाँ गलत जा रही हैं चीज़ें। दैट इज़ लीस्ट अ क्रिएटर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज ऑडियंस, एंड दैट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर अ क्रिएटर कि उसकी ऑडियंस इंटरेक्ट करे उसके साथ। अब इस पूरी सिचुएशन में रोज़ अगर कोई कंटेंट बना रहा है, अगर कोई हर वीक कंटेंट बना रहा है, हर मंथ कंटेंट बना रहा है, पूरे साल वीडियोस बना रहा है, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल ईजी। लेट मी टेल यू, आई हैव एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ। वीक के 2 वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। मेकिंग वीडियोज़ ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मेकिंग कंटेंट इंक्लूड सैक्रिफाइसेस। बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं लोग। अगर मैं अपनी लेवल की बात करूँ, अगर तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हें मेरे वार्डरोब में कपड़ों से ज़्यादा ट्राइपॉड्स, लाइट्स दिखेंगी, बिकॉज दैट इज़ अ वे ऑफ सेक्रीफाइस, दैट इज समथिंग विच आई डू, दैट इज सेक्रीफाइस फॉर मी। इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ना बाहर जाता हूँ, ना मैं बाहर घूमता हूँ। आई जस्ट मेक वीडियोज़ बाई जस्ट सिटिंग इन माई रूम। अगर तुम देखो तो मेरे 1 या फिर 1.5 साल से वीडियोज़ सारे घर के अंदर ही दिखेंगे, बिकॉज आई हार्डली गो आउट, आई हार्डली go enjoy with my friends, and I don't know why I'm sharing this with you, but that is what sacrifice means. और अगर मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि मेरे से ऊपर जो नंबर्स में है लोग, वो कैसे सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। एंड इट हर्ट्स कि जब इन सब चीज़ों के बाद भी उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं, जो चीज़ अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं, इन रिटर्न उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। बट एक चीज़ मिल रही है जो है हेट, एक चीज़ मिल रही है जो है क्रिटिसिज्म। सो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि इफ़ यू वांट टू सपोर्ट अ क्रिएटर, अगर तुम में से कोई वीडियोस बनाता है, अगर तुम्हारे फ्रेंड्स वीडियोस बना रहे हैं, अगर कुछ चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करो। द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू वर्स्ट, ये टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, एंड द लीस्ट समवन कैन एक्सपेक्ट इज़ हेट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर कोई क्रिएटर आउट ऑफ द ब्लूज, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करता है, तो उसकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी क्रिएटिविटी का एक तरह से मर्डर कर देते हैं, एंड ही इज़ नॉट एबल टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स। और वो वही एक बॉक्स में बंद होकर रह जाता है, वो बाउंड हो जाता है उस चीज़ को करने के लिए, एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज कि उसकी ऑडियंस उसको एक पॉइंट के बाद एक्सपेरिमेंट नहीं करने देती है। एंड अगर वो कुछ अलग करता है तो
उसे बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मिलता है एंड दैट इज़ व्हाट अ क्रिएटर फियर्स, उसकी ऑडियंस का वहाँ से जाना। अगर मैं यूट्यूब इंडिया की बात करूँ तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी है। ट्रेंडिंग पेज हाईजैक्ड है और बड़ी बड़ी कंपनीज ट्रेंडिंग पेज चला रही हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट अनडिजर्विंग क्रिएटर्स लाइमलाइट में आ रहे हैं एंड जो क्रिएटर्स एक्चुअली डिजर्व करते हैं वो क्राउड उन्हें नहीं मिल रहा है। सो अगर आज तुमने एज अ क्रिएटर इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज एन ऑडियंस अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया, तो लेट मी टेल यू द डे इज़ नॉट फार दैट यूट्यूब इंडिया पे ना ही अच्छे ऑडियंस ग्रोथ हो पाएगी और ना ही अच्छे क्रिएटर्स बाहर आ पाएंगे। अगर तुम अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एट द एंड यही बोलूँगा कि एक क्रिएटर को वो चीज़ दो जो वो डिजर्व करता है एंड या दैट इज़ इट, दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इन सब चीज़ों से क्रिएटर को फ़र्क पड़ता है।